Dear students, I am Sagar. Welcome to my YouTube channel, The Success Point Coaching Center Puri. ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଟେନ୍ସର ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଟେନ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିନାହୁଁ। ଟେନ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ଏବଂ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମୁଁ ବନେଇକରି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହା ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ, ନୋଟ୍ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି କରୁଛି। ଆମେ ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଫର୍ମାଟ୍ଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଯେପରି ଟେନ୍ସ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଆମେ ଯଦି ଟେନ୍ସକୁ ଇଂଲିଶର ବେସ୍ ବୋଲି କହିବା ବା ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଟେନ୍ସକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର ନ କରିବ ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାରେ, ବୁଝିବାରେ, ଲେଖିବାରେ ଏବଂ କହିବାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଖରାପ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏସେ ଲେଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଟେନ୍ସ। ପିଲେ ଟେନ୍ସ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟି ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାଟି ବୁଝିନଥିବାରୁ ତା'ର ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂଲିଶ କରିବା ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଟେନ୍ସର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କାହା କୁହନ୍ତି ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦର ସମାହାର, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦର ସମାହାର ଯାହା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପିଲେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗିଭ୍ ୟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦର ସମାହାର ଯାହା ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦର ସମାହାର ହେଇଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ୟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେନ୍ସ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମକୁ ସେନ୍ସ ନ ଦେଉଥିବ। ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କେତେ ଭାଗ ଭିତରେ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇଜ୍ ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ତାହେଲେ ଟୁ ଦ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇଜ୍ ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ତାହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ? ପିଲେ ସବଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥ କର୍ତ୍ତା। ସବଜେକ୍ଟ କାହା କୁହନ୍ତି? ପିଲେ ପଏଣ୍ଟ 1, ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ କହୁ ତାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା କହିବା। ପିଲେ ପଏଣ୍ଟ 2, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୁଏ ବା ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଏ ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କହିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ପକ୍ଷୀଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଇ? ପକ୍ଷୀଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଇ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। ପିଲେ ଉଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି? ପକ୍ଷୀଟି ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ନା ପକ୍ଷୀଟି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଥିବ? ବା ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନେମ୍ ଦ ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱି ଆର୍ ସ୍ପିକିଂ ଏବାଉଟ୍। ପିଲେ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କହିଲେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ। ପିଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁକୁ ବୁଝେଇବ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନାଁକୁ ବୁଝେଇବ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାଁକୁ ବୁଝେଇବ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିବା। ପିଲେ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ କ'ଣ? ନା ପିଲେ କର୍ତ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଦ ରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ତାହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଂଶ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ସେ ସମଥିଙ୍ଗ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ। ପିଲେ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ସବୁବେଳେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହେ? ନା କର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ କୁହେ। ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୟାନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ପିଲେ ଯଦି ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ହରି, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସେ ଏବାଉଟ୍ ଦ ହରି? ତୁମେ ହରି ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବ କି? କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ହରି ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ନାହିଁ ବା ବିଧେୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ତା'ର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ବା କର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ ରିମାଇନିଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରେଡିକେଟ୍। ପିଲେ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ସବଜେକ୍ଟ ନଥାଏ,
सब्जेक्ट को काटदेला जो रेस्ट पार्ट रोचे वाक्यर से रेस्ट पार्ट को आम कौन कहवा प्रेडिकेट बा विधेय बोली कहवा। नेक्स्ट देखा पे प्रेडिकेट को केते भाग में विभक्त कराई प्रेडिकेट को दुई भाग में विभक्त कराई वन इज भर्ब एंड अदर इज ऑब्जेक्ट पे भर्ब अर्थ कौन क्रिया ऑब्जेक्ट अर्थ कर्म ताले भर्ब कहा कहती पे प्रथम देखिए भर्ब कहा कहती ना वाक्य जो शब्द कौन सी कार्यर सूचना दिए वाक्य जो शब्द कौन सी कार्यर सूचना दिए ताको हम भर्ब कहवा। उदाहरण स्वरूप पड़िया गाईटी चरुअछि पे पड़िया गोटे शब्द गाईटी गोटे शब्द चरुअछि गोटे शब्द एटा तीनोटी शब्द अच्छी यही तीनोटी शब्द मध्यरु केउ शब्दटी एक कार्यर सूचना दौछि पिले गाईटी तो कौन सी कार्य सूचना दौनी पड़िया मध्य कौन सी कार्य सूचना दौनी चरुअछि पिले चरिबा होछि एक एक्शन वर्ड बा डुइंग वर्ड बा जहाँ को आम क्रिया बोली कहले अति साधारण भाव में आम जहाँ करूँ पे दैनंदिन जीवन भितर आम जहाँ करूँ नाचिबा खाइबा हसिबा गाइबा एवरीथिंग ये सबुड़िक क्रिया। तेणु क्रिया डेफिनेशन होची वाक्य जो शब्द कौन सी कार्यर सूचना दिए ताको आम कौन कहवा भर्ब। पिले माने ताले भर्ब केते भितर आइछि दुई भाग में आम आलोचना करिया। प्रथम ऑब्जेक्ट को साथ दबा पिले ऑब्जेक्ट अर्थ कर्म पिले इंग्लिश रे ऑब्जेक्ट स्थान भर्ब पर पिले यह हबो सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तेणु ऑब्जेक्ट पर ही सॉरी भर्ब पर ही ऑब्जेक्ट आसी थाए भर्ब पर ही कौन आसी ऑब्जेक्ट आसी थाए। तेणु वाक्य भर्ब पर उक्त वाक्य को संपूर्ण करने पाई जो शब्दर व्यवहार करा जाए ताको आम कौन कहवा ऑब्जेक्ट कहवा। पिले माने तुम मन में क्वेश्चन आसूची जे भर्ब पर जो शब्द आसूची समस्ते ऑब्जेक्ट होंदिनी कम्प्लीमेंट मध्य अच्छी आर्जेंट मध्य अच्छी ताले ऑब्जेक्ट क्या कहवा आम सीना सिंपली कहीदेली सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तेणु भर्ब पर कौन आसूची ऑब्जेक्ट आसूची वाक्य तेणु वाक्य भर्ब पर उक्त वाक्य को संपूर्ण करने जो शब्द व्यवहार करा जाए ताको आम ऑब्जेक्ट कहवा। पिले सिंपली वे गोटे अच्छी पिले ऑब्जेक्ट दुई भाग रही गोटे हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गोटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तेणु ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आम जाना केमती पिले सिंपली आम दुईटी क्वेश्चन क्या पचारिया भर्ब पचारिया ताले की क्वेश्चन पचारिया पिले माने गोटे व्हाट क्वेश्चन आ गोटे हुम क्वेश्चन। तो दुईटी क्वेश्चन आम क्या पचारा भर्ब पचारिया यदि व्हाट आ हुम क्वेश्चन दुटा पचारदबा ताले वाक्य जहाँ उत्तर आसो ता ऑब्जेक्ट। उदाहरण बा आई गेव हिम ए पेन पिले माने ये उदाहरण देख जे आई गेव हिम पिले भर्ब किए गेव ए गेव को दीटा क्वेश्चन पचारिया मु देली ताल दीटा क्वेश्चन कौन पचारिया गोटे व्हाट क्वेश्चन गोटे हुम क्वेश्चन ताल प्रथम पचार मु देली क्या देली पिले ये हुम बसैली क्या WHOM हुम क्या पिले तांकु ताले मु क्या देली तांकु देली ताले एटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पिले हुम क्वेश्चन पचारा बेले जो ऑब्जेक्ट उत्तर हम ताको आम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहवा। पिले व्हाट क्वेश्चन पचारिया कौन देली पिले माने पेन देली तार पेन है कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एटा दीटा ऑब्जेक्ट अच्छी। तेणु आम एपरी कहीपर सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। तेणु यही वाक्य रे दुईटी ऑब्जेक्ट थाईपे गोटे ऑब्जेक्ट थाईपे ऑब्जेक्ट न थाईपे जदि वाक्य दुईटी ऑब्जेक्ट थाए ताले पिले माने प्रथम ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द्वितीय ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूर्व के आसीपर ना। तेणु बुझीपार ऑब्जेक्ट क्या कहती ऑब्जेक्ट केते भितर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किपर चिन्ह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किपर चिन्ह जदि आम व्हाट को भर्ब को व्हाट क्वेश्चन पचारिया जो शब्द उत्तर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहवा। हुम क्वेश्चन पचारे जो उत्तर हम जो शब्दटा उत्तर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहवा।
साधारणतः डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गोटे जिनिस को बुझी थाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गोटे व्यक्ति को बुझी थाए ये पे दिखाई ह्वाट क्वेश्चन और हुम क्वेश्चन तो मैंने आपको ट्राए करें निश्चित भाव में जापर ए देखा भर्ब को केते भाग विभक्त रही पे भर्ब को दुई भाग विभक्त रही कौन कौन गोटे ऑक्सिलरी बा हेल्पिंग भर्ब गोटे मेन भर्ब ताले ऑक्सिलरी भर्ब क्या कहबा एन ऑक्सिलरी मेरियल हेल्प्स अनदर भर्ब बा ए भर्ब व्हिच हेल्प्स टू द अदर भर्ब ताले जो भर्ब अन्य भर्ब साहाय्य करे तब साहाय्य करे क्रिया कहबा पे मेन भर्ब क्या कहबा ना ए भर्ब विथ फुल मीनिंग इज नोन एज मेन भर्ब जो भर्ब संपूर्ण अर्थ प्रकाश करे ताको हम मुख्य क्रिया कहबा पे उदाहरण स्वरूप जमी कहली नाचिबा खाइबा गाइबा हसिबा खेलिबा पढ़िबा दौड़िबा ये सब मुख्य क्रिया तेणु ये शब्द गुड़िक संपूर्ण अर्थ प्रकाश करती पे ऑक्सिलरी भर्ब गुड़िक इट हैज नो कंप्लीट मीनिंग यार संपूर्ण अर्थ नाही तेणु यह आमको संपूर्ण अर्थ प्रकाश करें ना तेणु एगुड़िक आम कौन कहवा साहाय्यकारी क्रिया कहवा तेणु ऑक्सिलरी भर्ब काम हूँ सी सर्वदा क्या साहाय्य कर ना मेन भर्ब साहाय्य कर टू एक्सप्रेस बा टू कंप्लीट इट्स मीनिंग तेणु ऑक्सिलरी भर्ब काम से मेन भर्ब को साहाय्य कर ताले आम देखा ऑक्सिलरी भर्ब केते भितर रही ना ऑक्सिलरी भर्ब को ती भाग रही गोटे प्राइमरी ऑक्सिलरी गोटे सेकेंडरी बा मॉडल ऑक्सिलरी ताले टू टाइप ऑफ ऑक्सिलरी ताले देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन पे माने प्राइमरी ऑक्सिलरी को तीन भाग में विभक्त रही गोटे बी टाइप गोटे डू टाइप गोटे हाफ टाइप पे आम बी भर्ब कहीपर डू भर्ब हाफ भर्ब कहीपर तेणु प्रेजेंटर बी भर्ब किए प्रेजेंटर बी भर्ब इज आम आर बी बीइंग पे पास्ट कौन वाज वेयर बीन डू भर्ब कौन डू डज पास्ट कौन डिड प्रेजेंट हाफ भर्ब कौन हाव आज पास्ट हाफ भर्ब कौन हाड पे माने ये टोटाल हूँ 14टी ऑक्सिलरी आम जो प्राइमरी ऑक्सिलरी कथा कहते हैं इंग्लिश रे देयर आर 14 प्राइमरी ऑक्सिलरी इन इंग्लिश तुम आपको गण दे पार प्रत्येक बक्सर भर्ब गुड़ी को पे ये जो ऑक्सिलरी गुड़िक इट हैज नो कंप्लीट मीनिंग ये गुड़िकर संपूर्ण अर्थ नाही तेणु ये गुड़िक संपूर्ण अर्थ प्रकाश करवा माने ऑक्सिलरी भर्ब माने मेन भर्ब सहित व्यवहार होई माने मेन भर्ब को अर्थ प्रकाश करिबारे साहाय्य करती तेणु देयर आर 14 प्राइमरी ऑक्सिलरी इन इंग्लिश इंग्लिश रे 14टी प्राइमरी ऑक्सिलरी अच्छी ताले मॉडल ऑक्सिलरी देखिबा पे माने सेकेंडरी मॉडल ऑक्सिलरी पे एठारे मॉडल ऑक्सिलरी दिया जायछि पे 4टी पेयर अच्छी प्रेजेंट और पास्ट विल वुड शाल शुड मे माइट कैन कुड पे पेयर 4टी अच्छी आउ रहा 5टी पे सिंगल अच्छी ताले 5टी कौन मस्ट नीड डेयर यूज टू अटू पे मोटला 13टी ताले देयर आर 13 मॉडल ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश ताले 13टी है मॉडल ऑक्सिलरी 14टी है प्राइमरी ऑक्सिलरी पे मोट हूँ के 27 तेन देयर आर 27 ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश ताले इंग्लिश रे सर्वमोट केतोटी ऑक्सिलरी अच्छी पे 27टी ऑक्सिलरी भर्ब अच्छी आम आपको इजिली मन रखिपर जे यार संपूर्ण अर्थ ना पे आउ गोटे कथा तो मैं कहूँ जे ए प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन यूज एज ए मेन भर्ब इन द सेंटेंस बट मॉडल ऑक्सिलरी कैन नॉट ताले प्राइमरी ऑक्सिलरी को तुम्हें वाक्य रे मेन भर्ब रूपे व्यवहार करि पारिबो किंतु मॉडल ऑक्सिलरी को वाक्य रे मेन भर्ब रूपे व्यवहार करि पारिबो नाही पे तार दुईटी उदाहरण बा उदाहरण बर्तमान देखा जे केमती प्राइमरी ऑक्सिलरी गोटे मेन भर्ब हो पारिबो किंतु गोटे मॉडल ऑक्सिलरी मेन भर्ब हो पारिबो नाही पे उदाहरण आम नवा आई हैव पेन आई हैव ए पेन पे हाफ देख हाफटा है गोटे भर्ब अच्छी आउ क्या सहित एग्रीमेंट करुच्ची ना सब्जेक्ट सहित एग्रीमेंट करुच्ची कौन कहवा मेन भर्ब कहवा पे तुम मान क्वेश्चन हम सार आप तो कहले जे एगुड़ी सब ऑक्सिलरी भर्ब आपने पुणी मेन भर्ब कहते पे रूल कहूँ जदि वाक्य गोटे भर्ब थाए आ सब्जेक्ट सहित कौन करे एग्रीमेंट करे ताले आम कौन कहवा मेन भर्ब कहवा तेणु एठारे आई हैव ए पेन रे केवल हाव अच्छी भर्ब पे हाव हूँ प्रेजेंट हा भर्ब हाव हाजर है तार पास हूँ हाड़ तेणु आई हैव ए पेन एठारे गोटे भर्ब अच्छी आउ ता क्या सहित एग्रीमेंट करुच्ची ना सब्जेक्ट आई सहित एग्रीमेंट करुच्ची तेणु रूल आम कहूँ जदि वाक्य गोटे भर्ब थाए आउ ता सब्जेक्ट सहित एग्रीमेंट करे ताक मेन भर्ब कहवा तेणु ए प्राइमरी ऑक्सिलरी
कैन यूज आज ए मेन भर्ब इन द सेंटेंस तेणु प्राइमरी ऑक्सिलरी वाक्य मेन भर्ब रूपे व्यवहार हो पार बट मोडाल ऑक्सिलरी कैन नॉट यूज पिले मोडाल ऑक्सिलरी कहि परिबोनी ना व्यवहार हो पार ना उदाहरण स्वरूप आई कैन ईट पिले आई कैन ईट मु लिखिली फिर देख ये कैन को आम स्वाधीन भाव में व्यवहार करा कारण मोडल ऑक्सिलरी व्यवहार करा माने निश्चित भाव गोटे मेन भर्ब थी ताले विदाउट मेन भर्ब ए मोडल कैन नॉट यूज इन द सेंटेंस तेणु आम कैन को बा मोडल ऑक्सिलरी जो 13टी रहा से मोडल ऑक्सिलरी गुड़ी को वाक्य मेन भर्ब रूपे व्यवहार करा ताले निश्चित भाव में कौन करवा ना मोडल ऑक्सिलरी पाखरे मेन भर्ब व्यवहार हम किंतु प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन ना प्राइमरी ऑक्सिलरी निजे गोटे मेन भर्ब व्यवहार कर नोट कौच जे प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन यूज आज ए मेन भर्ब इन द सेंटेंस बट मोडल ऑक्सिलरी कैन नॉट ताले तो माने बुझी पारथिबो एबे देखिया पिले माने मेन भर्ब मुख्य क्रिया पिले भर्ब विथ फुल मीनिंग इज नोन आज ए मेन भर्ब बा जो भर्ब संपूर्ण अर्थ प्रकाश करे ताको आम कौन कहवा ना मुख्य क्रिया कहवा पिले नाचिबा खाइबा गाइबा हसिबा खेलिबा तेणु एगुड़िक सब मुख्य क्रिया पिले मेन भर्ब को दुई भाग कराई गोटेला रेगुलार गोटेला इरेगुलार पिले रेगुलार कौन इरेगुलार कौन ना हुईस भर्ब टेक्स ईडी पिले जो भर्ब ईडी ग्रहण करुच्ची व्हेन इट इज चेंज इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जितेबाला यह पास्ट एवं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को चेंज होची सेतेबाला ईडी ग्रहण करुच्ची एग्जांपल प्ले जिते पास्ट होची प्लेड कहते पास्ट पार्टिसिपल होची प्लेड तेणु पास्ट एवं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम ताले आम ताको कौन कहबा रेगुलार भर्ब पिले इरेगुलार भर्ब कौन ना जोटे पास्ट एवं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रे समानता न थाए बा ईडी ग्रहण करी न थाए उदाहरण स्वरूप ईट एट इटेन ईट रु एट हैला पिले ईडी नेलानी एट रु इटेन हैला ताले पास्ट एवं पास्ट परफेक्ट भितर पिले माने पार्थक्य अछि बा ए दुईटी भिन्न बा समान रूप नाहांती तेणु आमे ताकू इरेगुलार भर्ब कहले तेणु ये बोथ रेगुलार एंड इरेगुलार मस्ट ए 5 फॉर्म्स ताले रेगुलार आ इरेगुलार को आमर 5 भाग रे विभक्त कराला ताले पिले मेन भर्ब 5टी रूप अछि ताले प्रथम कोन प्रेजेंट तापरे पास्ट तापरे पास्ट पार्टिसिपल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोग्रेसिव तेणु जो मेन भर्ब अछि पिले जहाँ गो वेंट गन गोज गोइंग तेणु प्रत्येक एभ्री मेन भर्ब मस्ट ए 5 फॉर्म्स बेसिकली 3टी फॉर्म तुमर ट्रांसलेशन बही दी थाए कि कौन वार्ड बुक रू पाइपर किंतु पिले थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एवं प्रोग्रेसिव ये दुईटर रूल अच्छी मुझे आमर जो टेन्स क्लास गुड़िक हम से क्लास रे मुझे गुड़िक एक्सप्लेन करी केवल आज जो विषयटी आम केवल ये जो फॉर्मेट दियाला ये फॉर्मेट को तुम कंप्लीट कर आम टेन्स पढ़ा पूर्वर ये गुड़िक आम जाना निहाती आवश्यक कहीं सब फंडामेंटल इंग्लिश तेणु ये गुड़िक डाउट रहिले आमको आगु को बहुत असुविधा हो तेणु जो पिला माने आमर ये भिडियो देखुच से आम रिक्वेस्ट आमर ये प्रत्येक भिडियो गुड़ी को से फॉलो करंतु बा तुम फॉलो कर जेपरी तुमे अति सहजरे इंग्लिश रू ओडिया अनुवाद करि परिबो बा ट्रांसलेट करि परिबो ओडिया टू इंग्लिश मध्य अति सहजरे लिखि परिबो व्याकरणगत जो भूल तुम रोचे से गुड़ संशोधन कर पारिबो निजे एग्जाम रे तुमे एसे लेटर मध्य निज भाषा रू अनुवाद कर लिखि पारिबो जदि आमर ए भिडियोटी तुम भल लगुच निश्चित भाव में आमर कमेंट बॉक्स रे कमेंट दियो जदि आमर यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट कोचिंग सब्सक्राइब करना इमिडिएटली सब्सक्राइब कर एवं आमर जो टेन्स क्लास गुड़ दिखाऊँ निश्चित भाव में फॉलो कर